practice session. Okay, how we can check given grammar is the LL1 or not. Okay, it is a very good numerical and asked several times in your exam also. The check the LL1 or not. If grammar is given and the question asks the check the LL1 or not. So when such kind of a situation given in your problem, first of all we have a calculate first and follow whatever grammar is given. Okay. So here we have find the S dash E. Here we have a mention NT, that is indicate the non-terminal. So whatever non-terminal here we have found the S dash E, and we have calculated the first and follow. Anybody have you any doubt how to calculate this first and follow? किसी को कोई doubts है? Is it clear by everyone? Please feel free to ask. Okay, don't hesitate. It is a very small questions, really silly question. Don't ask, hesitate. Because right now you are learning phase, so whatever question you have feel free to ask. किसी को कोई doubt हो तो पूछो. Yeah, we move further. Please respond. We move further. Or have you any doubt? Is it clear? Yes. Is it clear? या कोई क्वेश्चन है किसी का? No questions. No question. चलो एक बार मैं recap कर देता हूँ just how we can calculate the S. How we can calculate the first? First of all, whatever production given by the S, here the S first is the I and A. That's why here mentioned the I and A. And after that we have take the S dash. We have calculated the first after S dash. So here we find the E and epsilon. And again it is very simple. The E we calculate the first after E. We have find out the B in a grammar. Okay. And whenever we have a calculate the follow, at that time first of all at the right side we have to search out that particular element S. Here we have found S, and right side all the element take as the first of a S dash. First of a S dash equal to E and epsilon. But here mention the E but not mention the epsilon because the follow doesn't associate the epsilon. So in this situation we have a check where this S dash is come from. So again we have the follow of a S. So follow of a S is the E and S dash. That's why we mention here. Okay. And what is the third one? E, follow of E. Here E, follow of is the first of a right side of this one. So we have find the T. Sure. Anybody can solve this one, and now we have learn how to calculate the parsing table of this one. Okay. Anybody can earlier calculated this one because we have a. ठीक है, किसी ने पहले कैलकुलेट किया गया इसको? वंशिका, are you completed this one? Yes, sir. Parse table बन गई थी. Okay, very good. Yes, sir. और किसका बनाया सब? और वंशिका का बन गया, और प्रतिभा आपका? Yes, sir. Yes, sir, बन गया. Very good, very good. चलो, तो कोई प्रॉब्लम थी टेबल बनाने में या इजीली बन गया? कोई दिक्कत थी? जिसका बन गया तो उसका ठीक है. चलो एक बार मैं भी बना लेता हूँ जितने लोगों को थोड़ा कम सा. जी सर, ए प्रोडक्शन के लिए रिपीटिशन आ रहा था. ए प्रोडक्शन के लिए रिपीटिशन आ रहा है? Yes, sir. S dash में. Yes, sir, S dash का जब. चलो अभी एक सेकंड, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा. आप लोगों ने सॉल्व किया, बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया. ठीक है, तो जिन्होंने सॉल्व नहीं किया तो ये बातें ही नहीं समझ आएगी उनकी, हम लोग क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, सो वी हैव सॉल्व दिस वन, उसके बाद बात करते हैं. ठीक है, वी सॉल्व इट हियर, इसलिए हम प्रोडक्शन को लिख पाए. ओके, वी हैव रीड द स्पेस आल्सो. Direction. Now, what is a production? What is a non-terminal? We have find the S. Okay. After that, S dash and E. Is it clear by everyone? जो भी यहाँ पे था, देखो non-terminal S dash E. We have just copied.
अब हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हाउ टू मेक द पार्सिंग टेबल. फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी वी हैव मेंशन, देयर इज अ 4 स्टेप involved into this. ठीक है. Right now it's very important, and here we have checked the given grammar is the LL1 or not. Okay, when such type of a question asked, first of all calculate the first and follow of a grammar, and after that we have create some our parsing table. Okay, so here we have calculated. Here we have a create our table. So after that we have a fill that particular table. So we have changed the color also so that we can easily identify. ठीक, here मुझे क्या करना है, S को fill करना है. S को fill का क्या है, S का जो प्रोडक्शन है वो लिखना है. तो कहाँ हम fill कर सकते हैं, we have checked this one कि first कहाँ पे, S का first कहाँ पे है, I पे. ठीक है, and S का प्रोडक्शन क्या है, A पे. ठीक, दोनों चीजों को मुझे fill करता है. We have a fill this I and A. बट अब ये क्वेश्चन आता है कि सर किस वाले को I पे भरेंगे, किसको A को भरेंगे, बिकॉज द S प्रोड्यूस द multiple production. What is a multiple production? The S production is the small I, this one, and the second production S derived to A. तो जहाँ पे A का टर्मिनल है वहाँ पे A का लिखेंगे, जहाँ पे I टर्मिनल इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे I का प्रोडक्शन लिखेंगे. इज इट सिंपल. कैसे मुझे पता चला कि मैं यहाँ फिल करूंगा, वी हैव सीन दिस वन फर्स्ट. ठीक है, मैं पहले इसका S का फर्स्ट देखूंगा. तो I पे जो हमारा प्रोडक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, S derived to S derived to I, E, and small t, S and S dash. Okay, small t, here mention S, again we have mentioned the S dash. Is it clear? And here we have mentioned the S. Is it clear? Anyone? Yeah, have you any doubt? अभी अदर पीपल्स बोलेंगे, देखो 4-5 लोग को तो एकदम क्लियर हो रहा है, उन्होंने वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं. अब वो लोग बताएं जिनको कोई डाउट है. इज इट क्लियर बाय एवरीवन या एनीबॉडी हैव अ डाउट? सर आपने ये कैसे कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया. चलो अगेन वी हैव पुट दिस वन एज दिस. तो यार ई के लिए तो ठीक है, इन अ फर्स्ट वी हैव फाइंड द ई. सो हियर हैव मेंशन द S dash is the S dash. We have to find out sorry, B na, we have a mention in a E. Is a B, not here, not mentioned. We mention the position of a E. Okay, E is the okay. We have mentioned here in a position of a E. So here we have a find out S dash derived to small e and S. Is it clear? And again we have a find out the S dash or epsilon. Whenever the epsilon is occur, what is our step? Anyone please respond. First में epsilon आता है तो मैं कहाँ पे लिखूंगा? Anyone? फॉलो वाले टर्मिनल्स. किसका फॉलो लेंगे? एस डैश का. राइट, एस डैश का फॉलो ले लेंगे. एस डैश का फॉलो क्या है? ई एंड डॉलर. ई पे हम फिर से प्रोडक्ट, हाँ यस, ई पे मैं फिर से प्रोडक्शन क्या लिखूंगा यहाँ पे? एस डैश. देख रहे हैं एक बॉक्स में 2 बार लिख रहे हैं. ठीक है, अभी इसका मतलब समझाते हैं क्या. here mention the epsilon. Why we have mentioned here 2 times? क्योंकि फिर से वो ई पे ही रिपीट कर रहा है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट हियर वी मेंशन दिस वन.
because the production follow give the PDS and this. So this is known as a conflict. I study in detail कि कैसे. फिर मुझे क्या करना है, B पे करना है. So here we have mentioned the B. So B तो ठीक है, E डिवाइड टू B हो गया. Is it clear? सबका यही सेम आ रहा है या किसी का कुछ डिफरेंट है? किसी का डिफरेंट है तो प्लीज आस्क. अगर सेम है तो that's it. Is it right? Everybody have find out the same answer? Yes, sir. Yes, sir. Good. देखो जब भी इस तरीके से Yes. yes. अब ध्यान से समझो कि how we can able to take the decision the given grammar is the LL1 or not. हम ये कैसे बता पाएंगे कि in which situation we have able to told that कि this given grammar is the LL1 or not. देखिए ये जो भी बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर सिंगल एंट्री होते हैं किसी भी बॉक्स में, ब्लैंक है इट्स इनफ. ब्लैंक है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. बट एक बॉक्स में एक ही एंट्री होनी चाहिए. अगर ऐसा है जैसे यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स में क्या है, एस डैश में ई पे क्या है, 2 एंट्री है. तो हियर कंपाइलर फेस द कॉन्फ्लिक्ट एम्बिग्यूटी, मुझे इसको लेना है इसको लेना है, ठीक है. तो दिस दैट इज ए सिचुएशन ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट. एंड इन ए नेक्स्ट क्लास, इन अपकमिंग क्लास वी हैव आल्सो स्टडी दैट कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट इज अकर, किस किस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट अकर होते हैं, वो ऑब्वियस होने चाहिए. व्हाट इज द टाइप ऑफ ए दिस वन एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई सच काइंड ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट. तो ये भी हम लर्न करेंगे, ठीक है. there are two type of a conflict we have a find out. The name is the shift reduce and reduce. okay, so हम अभी अपकमिंग क्लास में इसको पढ़ेंगे कि कैसे होता है. अभी के लिए ये चीज आप समझिए कि एक बॉक्स में अगर 2 एंट्री है, इसका क्या मतलब है, दिस पर्टिकुलर ग्रामर इज नॉट ए LL1. इज इट क्लियर? हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है. सो हियर वी हैव ए मेंशन दैट. अब यहाँ पे LL1 नहीं है, मुझे पार्सिंग टेबल से पता चल गया. So there is a no need to create the parse tree or parse tree and stack implementation. Is it clear? When we have a find out, this grammar is a not LL1. This grammar is not LL1. Okay. Since there are, mention the reason also. So you can since there are more than one production, so it is not a LL. Here you have mentioned. Since there are more than where we have find the more than one production, एक बॉक्स में क्या है, एक से ज्यादा है, ठीक है. सब में सिंगल एंट्री होती तो क्या होता, ये इट इज ए LL1. ओके, इट इज ए LL1. सो फिर से मैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, उसका पार्स ट्री भी बनाता है. अगर वो गिवन होता है क्वेश्चंस में कि हमें ये भी करना है. 10 मार्क्स का है तो सारा कर देंगे. 5 मार्क्स का है वो बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे पार्सिंग टेबल, तो हम सिर्फ पार्सिंग टेबल तक बनाएंगे. ओके, बट इफ इट इज आस्क इन ए 10 मार्क्स क्वेश्चन, 15 मार्क्स क्वेश्चन, so at that time we have derived of all the 4 steps. okay, क्या क्या 4 step है, we have calculated the first and follow. okay, and second step construct the parse tree, third is the step stack implementation, fourth is the draw the parse tree. okay, and show the reason it is the parse tree more than so here we have completed this line. Since there are more than one production, there are more production, so it is not LL1. Is it clear? Yeah, have you any doubt? Please ask. Please respond also. So आप यहाँ पे लिख सकते हैं. So in a note there is a no need to, so that you have remember this one. No need to create stack implementation. Because we have already know it is a not a LL1, तो वहाँ पे ना स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा. अच्छा, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, ये कैसे पता चलेगा? अभी तो मैंने पार्सिंग टेबल देख के देख लिया. जैसे मैं स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, और मुझे ये पता करना है कि पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी. तो
which situation we have told this one? Anyone please respond? मैंने बताया था पिछली क्लास में, मैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, मुझे ये डिसीजन लेना है कि नेक्स्ट जो पास ट्री बनाऊंगा वो बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कैसे पता चलेगा? सर जब लास्ट में स्टैक और इनपुट में सेम वो नहीं होगा, डॉलर सेम नहीं, डॉलर आना चाहिए बस, डॉलर नॉट, ठीक है, डॉलर, यस, इट इज ए मस्ट, ठीक है, इट इज ए नेसेसरी कंडीशन कि दोनों में डॉलर होना चाहिए। कहाँ पे? स्टैक में भी और इनपुट में भी, दोनों में डॉलर आ रहा है तभी मैं क्या कर पाऊंगा, पास ट्री बना पाऊंगा। अगर दोनों में डॉलर नहीं आ रहा है, वी हैव अनेबल टू ड्रॉ द पास ट्री। मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ, जैसे इस अब देखो होता क्या था, इसके बाद मैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करता था, बट यहाँ पे 2 एंट्री आ गई तो मैं ये जान गया नहीं इसका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं पास ट्री होगा। तो हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या 2 एंट्री आ गई तो मुझे ना स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करना है नहीं वो करना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये LL1 है ही नहीं। LL1 होने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या है कि सारी जो भी एंट्री मैं कर रहा हूँ फर्स्ट एंड फॉलो निकाल के, सब में सिंगल एंट्री होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये एक सेमेस्टर एग्जाम जब पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा करना होता है, ठीक है। सो हियर वी मेंशन दिस, नो नीड टू no need of a creator, no need of a creator, no need of a stack implementation and you have note down this one, and after that we have a start the new topic, and if you have any doubt please ask कि सर समझ में नहीं आया कैसे क्या चला, otherwise we have start the new topic that is a bottom up parser, the top down parser is over, okay. Have you any doubt, any suggestion, any questions, please ask. LL1 में मेमोरी और टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो कोई रियल लैंग्वेज है जो यूज करती है LL1? हाँ अभी बताएंगे, वो आपने आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैंक के लिए मेमोरी यूज कर रहा है और बाकी कॉन्सेप्ट के लिए, तो अभी ये अगर जो आप फास्ट मैट्रिक्स भी यूज करेंगे फिर भी बहुत मेमोरी, कोई राइट बड़े राइट प्रोग्राम के लिए बहुत टाइम लगेगा। right, it's that's why we have in a practically way we have used very less of this LL1, ठीक है। mostly we have preferred for the bottom up approach, okay। तो अभी वो आगे पढ़ेंगे पूरा कि कैसे बॉटम अप काम करता है। देयर आर several type of algorithm whatever associated in the bottom up parser, for example the LR parser आपने सुना होगा, the among LR parser is also created the 4 different types. The name is LR0, SLR1, LALR1, CLR1, okay. And again it's categorized the 2 more topic, and the LR0 and SLR used with the help of a LR0 item, LALR1 and SLR1 use the LR1 items. So there are lots of algorithm, so हम based on application उसको use करते हैं कि which one is better and which one is not. तो अभी आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टॉपिक के आगे का है, इज इट क्लियर? आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे अगर पढ़े होंगे, otherwise कुछ टाइम बाद जब whenever we have covered the bottom up or LRO parser, the next upcoming topic is the LR parser also, ठीक है। तो उसके जो 4 कैटेगरीज हैं वो पूरा हम पढ़ लेंगे, कौन कौन सा, LR0, SLR1, LLR1 and CLR1। at that time we have able to find out कि किस एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई करना है, ओके। and mostly in your up to your level कि सिर्फ ये आपको गिवन होगा, ऐसा एप्लीकेशन वाला पोर्शन तो R&D सेक्टर में पूछते हैं फिलहाल आपका जो क्वेश्चन है, नॉट इन योर सिलेबस एट बीटेक लेवल, एट ए ग्रेजुएट लेवल। मोस्टली आस्क द क्वेश्चन लाइक दैट कि गिवन ग्रामर इज गिवन, चेक इज LR1, CLR1 and SLR1 and LLR1 and CLR, मतलब ये कौन सा इस कैटेगरी में सेटिस्फाई करता नहीं करता, आपको वो चेक करना है, पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, आपके लेवल तक बस इतना ही है। But if you are interested to learn more about them, there is no issue. I have discussed all these things. Okay. और कोई क्वेश्चन किसी का? Shivan, have you any another questions? कोई और क्वेश्चन? Okay. I think did you get the answer? Yes sir. Good. चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? Please ask. Feel free. Whatever you have asked. Because जब नया टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आगे रहूंगा ना। फिर अभी अगर किसी को कोई डाउट्स है, कोई वो है, आपकी क्लास में एक परमेश्वर, आई थिंक परमेश्वर ही नाम है, तो वो आ नहीं रहे हैं।
Have you any issue? Anybody know? Parmeshwar and परमेश्वर नहीं है सर कोई। उनको परमिशन नहीं है। परमेश्वर नाम तो कोई है परमिशन क्लास नाम में नहीं, परमेश्वर नाम का नहीं है कोई। नहीं परमेश्वर नाम का कोई है नहीं क्लास में। ओके, मैं चेक करता विश्वेंद्र तो हूँ। नहीं, विष्णु है। Let me check. After that, I clarify. And one more student also, the Pratik Arya. चलो पहले फिलहाल इस पे बात करते हैं, उन लोगों की बाद में बात करेंगे, ठीक है। किसी का और कोई क्वेश्चंस? एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। We move further. Have you any questions? Any doubts? Anyone have you any question? Let me check how many student is सर available. इसमें जैसे हाँ, हाँ। हम लोगों ने बताया कि अगर एक ब्लॉक में एक से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो LL1 नहीं होता है। तो उसका क्या रीज़न है, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्शन होने से क्या प्रॉब्लम आती है? राइट। आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये चीज मैं डिस्कस किया था, वैसे फिर मैं बता देता हूँ। प्रतिभा आई थिंक आस्क्ड द क्वेश्चन। ओके, इट इज गुड क्वेश्चन। एंड देखो, अभी आप उस टेबल को ध्यान से देखो। दैट मीन जब मैं एस डैश का प्रोडक्शन ले रहा था और ई पे था, ठीक है, तो एट ए टाइम क्या होगा? वी हैव ए कम हियर सो दैट let me open this one so you can easily understand. देखो अभी सुन लो एंड देखो वो क्या रहा है कि एक इनपुट देने के बाद वट एवर द इनपुट हियर वी हैव टू टेक, हम जब S1 क्या है, एक नॉन टर्मिनल स्टेट है प्रतिभा, इज इट क्लियर? ठीक, और वहां पे एज ए इनपुट क्या है, फर्स्ट टाइम फॉलो कर क्या रहा है, वो मुझे एज ए इनपुट की तरीके से एक डायरेक्शन बता रहा है कि मैं किसी भी प्रोडक्शन को कहाँ पे लिखूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनी पार्सर। कोई भी पार्सर का मेन फंडामेंटल क्या होता है, वो काम क्या करता है, इट्स डिराइव द पार्स ट्री। इज इट क्लियर? ठीक है, मेन फंडा क्या है, डिराइव द पार्स ट्री। पार्स ट्री डिराइव करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, मुझे ग्रामर देखना पड़ता है। ग्रामर में क्या मतलब है, इसको प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब सोचो S1 स्टेज पे कोई है, ध्यान से समझना इस बात को। S1 स्टेज पे है एंड वी हैव फाइंड आउट द, मुझे E एज ए इनपुट या जो इनपुट स्ट्रिंग का है वो डिराइव करना है। मैं यहाँ पे है, सो हियर द पार्सर इज कंफ्यूज्ड। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है, एस स्टेज पे है, ए इनपुट मिला तो वी हैव चूज this particular production. Okay, but if you are in a S1 stage and we have find out the input as a E, so here parser is a confused कि मुझे S dash का derivation epsilon लेना है या S dash का derivation small e s लेना है, so here it is a confused and unable to take the decision. Are you get this point? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे पार्सर क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है और उसको बताने वाला कोई नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कोई नहीं बता सकता उसको, तो यहाँ पे वो हैंग कर जाएगा या अनेबल टू टेक द डिसीजन। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ LL1. इज इट क्लियर? एनीबॉडी एनी अनदर क्वेश्चंस? फील फ्री टू आस्क, डोंट हेजिटेट, ठीक है, कुछ भी है, इंग्लिश हिंदी, यू कैन आस्क एनीवे। ओके, इज इट क्लियर? वी मूव फर्दर और you have required some कि सर 1-2 मिनट का वेट करिए। बाकी लोगों की क्या स्टेटस चल रहा है, पढ़ाई हो रही है? आर यू स्टडी सेल्फ स्टडी द बुक एंड ऑल दिस थिंग्स? एक टेस्ट ले लें क्या किसी दिन? कब देना है टेस्ट बताइए, थोड़ा देख लें क्या तैयारी चल रही है, पढ़ ही रह जा रहे हैं। हाँ प्रतिभा, कब देना है टेस्ट? सर जब आप ले लो। नहीं, आप प्रिपेयर करिए, इट इज नॉट अ सरप्राइज टेस्ट। यू हैव बेस्ट पार्ट इज दैट सर CAE 1 में कितनी यूनिट्स आएंगी? अरे ये बाद में बात करेंगे। मोस्टली ये कंसर्न होता है कि अदर फैकल्टी भी कितना पढ़ा रही है, और मे बी समटाइम आस्क द फ्रॉम IT डिपार्टमेंट आल्सो, अगर कॉमन पेपर बनता है। आप ये समझो कि 2 यूनिट तो होंगे, 2 यूनिट में फर्स्ट यूनिट टोटली कंप्लीट एंड सेकंड में जहां तक पढ़ा रहा है, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट इज दैट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप पूरा प्रिपेयर करते रहिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, सिर्फ सर अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है ना? नहीं, सेकंड चल रहा है आपका। ओके सर, ठीक है, सेकंड में भी आप पार्सिंग पढ़ रहे हैं, काफी हद तक आप टॉप डाउन पार्सर पूरा कवर कर चुके हैं। राइट नाउ वी हैव स्टडी द
LR ओके आपको शायद नोट्स मिल गई होगी आई हैव ऑलरेडी शेयर द नोट्स आल्सो नोट्स और भेज दें क्या नोट्स की जरूरत है क्या आपको भेजा तो है आई हैव ऑलरेडी शेयर द नोट्स बट इफ यू रिक्वायर्ड सम मोर नोट्स आल्सो तो वो भी मैं दे दूंगा ठीक है और कोई क्वेश्चंस किसी का कब है आपका CE1 पता है आपको सर अक्टूबर 5 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे शायद 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा चलो थोड़ा सा टाइम है तो मोस्टली मैं ये देख रहा हूँ कि जो LR पार्शर तक है यहाँ तक देंगे टॉप डाउन से लेके मतलब अब तक का पूरा लेके LR पार्शर तक पॉसिबिलिटी होगी जो भी स्टडी करने जाएंगे ठीक है टॉप डाउन और बॉटम अप एंड कवर ऑल द LR पार्शर छोटे छोटे जो नोट्स टाइप के होते हैं वो भी पढ़ लेना जैसे बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है ठीक है याक टूल कैसे यूज करता है इट इज सम टाइम आस्क इन योर शॉर्ट नोट्स आल्सो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या होता है ठीक एक बार आप पढ़ लो कोई डाउट हो एक बार मैंने ओवरव्यू दिया है अगर आपको लगता है कि सर हाँ एक बार आप फिर दे दीजिए तो मैं फिर दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं बट इट इज अ थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट एंड इट इज यूज्ड इन योर लैब एंड ऑल दिस ठीक है तो वो चलिए so today we have a study LR zero parser have you any other questions otherwise we have a start and next topic LR zero parser LR zero parser it is a top down or bottom up anyone बॉटम अप bottom exactly and what is your main concern of a bottom up in a top down we have a start from the root and go for the children or leaf nodes but in a bottom up we have a start from the bottom in a leaf node जो भी input string है and again we have process for the जो root node है वहाँ तक करता है so here we have a today we have a study what is a LR parser what is a kind of LR parser we have a study all these things चलो समझते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है पार्सिंग अगर आपने समझ ली तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ए कंपाइलर डिजाइन किसी को टफ तो नहीं लग रहा है कि सर थोड़ा सा टफ लग रहा है हाँ एनीवन फील फ्री टू आस्क कि सबको एकदम इजी लग रहा है कुछ है ही नहीं इसमें यस रिस्पॉन्ड फील फ्री टू डिस्कस आल्सो ओके अब देखो LR पार्सर क्या होता है वी हैव कैटेगराइज दिस वन LR पार्सर वी हैव मेंशन द LR ठीक है यहाँ पे आप समझेंगे कौन कौन सा पार्सर होता है इसके एंड व्हाट काइंड ऑफ LR parser and it is a categorized the LR0 again category of this one SLR1 so again it is a categorized in the 4 categories LALR 1 CLR 1 अभी आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिला आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा या कैसे होगा आई थिंक हैव यू रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन कि आपका ऑनलाइन मोड में ही चलेगा या चलो कोई नहीं एक मैं असाइनमेंट भी आपको दे दूंगा यू हैव सॉल्व दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट ठीक है तो असाइनमेंट सॉल्व करके इसी पोर्टल पे आप सबमिट करेंगे एंड किसी और प्रिपरेशन करो किसी दिन टेस्ट भी होगा तो बेस्ट पार्ट है कि 2-3 दिन में आप प्रिपेयर कर लो तो किसी दिन जिस दिन में चाहूँगा उस दिन टेस्ट ठीक है तो उसमें न्यूमेरिकल थियरी दोनों पूछे जाएंगे तो अच्छे से अच्छा एक चीज और आफ्टर टेस्ट वाइवा भी होगा ठीक है जैसे ये ऑनलाइन मोड है मुझे क्या पता आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए या बगल वाले से कॉपी कर लिए ठीक है तो उसको पढ़ के आना बिना पढ़े मतलब होगा नहीं काम so that कि after when we have submit your answer sheet and whenever we have evaluated तो मैं तुरंत वाइवा भी पूछ लूंगा आपसे कि ये कैसे आ रहा है और क्यों हो रहा है तो वो आप ऑनेस्टली करिएगा तभी आप मुझे समझा पाएंगे अदरवाइज आप समझा नहीं पाएंगे मुझे पढ़ते रहो कोई डाउट है कोई वो है आपको लगता है कि सर कोई ट्यूटोरियल क्लास आप ले लीजिए मैं भी मोर एक्स्ट्रा लेक्चर की समझ में नहीं आ रहा तो वी हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स बट बेस्ट पार्ट है कि आप बताइए कि दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है ना बताया तो नहीं जान पाऊंगा मैं इस डायग्राम को बना लो ये बेटर है
अभी मैं बना रहा हूँ कैसे. It is a very important whenever this questions asked, most of our questions asked into here. It is categorized like that. One category ये है, second one this one, LALR. आपको बॉक्स में करना हो तो इसको बॉक्स में भी कर सकते हैं. There is no issue. So that we have understand what is a LR0. The LR0 parser categorized into the 4 parts: LR0, SLR1, LLR1, and CLR1. And whenever we have a solved this one, we have a use this technique. ठीक है, जो LR0 है and SLR है, we have used to solve this LR0 and SLR using the LR0 item. And whenever we have a solved the categories सिर्फ यही है. These are categories we have mentioned here. And this is a tool. This is a technique. This is a tool. Based on this LR0 item, we have solved the LR0 and SLR1. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है कि whenever we have solved the LR0 and SLR, what kind of a approach we have used. At that time, we have used the LR0 item, and whenever we have used the LLR1 and SLR1, at that time we have used the LR0 item. Is it clear? इसको बॉक्स में कर लो, ये कैटेगरीज है. हाँ, ये मेंशन है, ये कैटेगरी है. तो आपको अगर कोई पूछे कि सर LR0 के कितने कैटेगरी होते हैं, देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ LR पार्सल. दिस कैटेगरी नेम इज LR0, SLRM. Anybody have you some idea about anyone? This is the parser we have already know. किसी को कोई आइडिया है क्या, कैसे क्या होता है, क्या सॉल्व करते हैं? सिवन, हैव यू स्टडी? वंशिका, किसी को कोई आइडिया? नहीं, वंशिका को नहीं है. सिवन, आप बताइए, पढ़ा हुआ है कहीं, कुछ देखा है? प्रतिभा, रिया, आप लोगों ने कहीं कुछ पढ़ा? नो सर. चलो कोई नहीं. हाँ, जो ऑनलाइन होते हैं ना कंपाइलर डिजाइन के, उसमें ये सारी टेक्निक्स यूज ही नहीं होती हैं. उसमें तो फिर नोड डिराइव कर करके. आपकी आवाज कट रही थी, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए. हाँ शिवन, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. यस, ऑनलाइन जो ये होता है कंपाइलर डिजाइन के कोर्सेज होते हैं, उनमें ये टेक्निक्स यूज ही करते हैं. चाहे ट्रांसलेशन हो या कुछ भी हो, उसमें एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स भी सही लैंग्वेज डिराइव और सिंटैक्स भी डिराइव कर लेते हैं. हाँ, नहीं, बात समझो पहले. आप जो टूल मॉडर्न में देख रहे हैं, विच टूल्स यू हैव यूज्ड रिसेंटली? मैं टूल्स नहीं, मैं खुद से ही मतलब क्रिएट करने में. हाँ, देखो बात समझो पहले, इससे कंफ्यूजन बहुत होता है. देयर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखो, इनका क्वेश्चन मैं बाकी लोगों को भी बताता हूँ. इनका कहना है कि सर जब मैं कंपाइलर डिजाइन टूल यूज करता हूँ ऑनलाइन मोड पे या समथिंग, तो वहाँ पे मुझे ये सब कंपाइलर या पार्सर की इम्प्लीमेंटेशन या इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, मे भी नहीं दिखता मुझे. एंड वी हैव एट दैट टाइम वी हैव यूज्ड द एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, जिसके हेल्प से हम करते हैं. अब ध्यान से समझो एक बात को हमारे, फिर आप समझ पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप जो है फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है सिवन, ठीक है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना. whenever you have designed that factorial program in a C language, तो वहां पे हमें क्या करना होगा? फैक्ट की लॉजिक डिफाइन करनी होगी, नहीं करनी होगी? यस सर, करनी होगी. इस डिफरेंस को समझना इंपॉर्टेंट है. फैक्ट की लॉजिक डिफाइन करनी होगी. ऐसा नहीं होगा कि मैं फैक्ट नाम का फंक्शन कॉल कर लूं और 5 का फैक्टोरियल 120 हमें मिल जाए. समझ पा रहे हैं आप ना? बट whenever we have a use the Java, ठीक है, तो मैं उस पैकेज को इंपोर्ट करता हूँ और फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ. ठीक है, तो अभी जो टूल या जो ऑनलाइन टूल है वो आपसे क्या करवा रहा है पता है? जो फंक्शन पैकेज बने हुए हैं उसको कॉल करा रहे हैं. तो आप एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं, वो कैलकुलेट होकर वहां से आ जा रहे हैं. बट एज ए इंजीनियर, व्हाट्स योर रोल? मुझे सिर्फ एप्लीकेशन नहीं सीखना है ना, वो कैसे बना है. मैं अपना कोई कंपाइलर बनाना चाहता हूँ, ठीक है,
तो ये बनाने के लिए कि whenever we have designed your own compiler, first of all we have a learn कि how to design the compiler, कि बाकी जो existing compiler है वो कैसे बना है। मेरा काम सिर्फ इतना नहीं मैं फैक्ट को कॉल करूँगा और उस पर कुछ भी वैल्यू इंसर्ट करके वहाँ पे चेंजेस कर दूँ ना, मुझे उस पैकेज को भी समझना पड़ेगा, उस डेफिनेशन को भी समझना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हियर वी डिस्कस्ड इन ऑल द डिटेल। इज इट क्लियर? यस सर। आई होप यू गेट द आंसर। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल भी मैं ले देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं एलोबरेट करके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आजकल मशीन लर्निंग का बड़ा क्रेज है। सम पीपल द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क, apply the pattern recognition, image processing, analysis of a medical healthcare sector. There are too many tools that available. ठीक है, and sometimes some vacational and training program is also running that कि आपको 3 महीने में सिखा देंगे, 6 महीने में सिखा देंगे ना, कहते हैं ना। अब ध्यान से इस डिफरेंस को समझना है यहाँ पे कि वो जो सिखा रहे हैं वो क्या सिखा रहे हैं। इट इज नॉट टॉट द मशीन लर्निंग, वो हमें सिर्फ एक टूल को रन करना सिखा रहे हैं। बट एज ए इंजीनियर आवर रोल इज डिफरेंट। देखिए हमारा सिर्फ ये नहीं है कि वी हैव गेट द जस्ट ओनली द 3.5 और 4 लाख पैकेज, हमारी वहाँ पे लिमिट नहीं होती। ओके, व्हाई द इंजीनियर राइट नाउ गेटिंग वेरी लेस अमाउंट? इट इज द देयर इज अ gap between the skill set. There is no unique skill. There is unable to understand the engineering aptitude also. So that's the package approximately very limited. The 3.5 एवरेज पैकेज तो ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ आ भी नहीं रहा है ना। वी नो ऑलरेडी आपने 3 महीना 2 महीना एक कोर्सेज किए हैं, उस टूल को सीखे हैं, तो सिर्फ उस टूल्स को सीख के आप उसको चला रहे हैं, रन करा रहे हैं, उसमें इनपुट दे रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंजीनियर सिर्फ इतनी नहीं होती कि मैं सिर्फ एक टूल को चलाऊं, ये इट्स गुड, बट मुझे ये भी समझना है कि व्हाट्स द एल्गोरिथम बिहाइंड दैट, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दिस प्रॉब्लम, हाउ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे मशीन लर्निंग पढ़ना है तो मुझे प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स की जो मैथमेटिक्स है वो बहुत अच्छी आनी चाहिए। हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी random values and also find out some mathematics in a uncertainty, if anywhere situation the multiple uncertainty, multiple variant is associated, so how we can define in this situation in the mathematics form। ठीक है, फिर उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप आता है कि मैं उसको टूल में प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करूँ और उस मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करूँ। तो जो ऐसा करता है उनकी पैकेज बहुत ज़्यादा होता है ना। Here I'm not only the focusing on the कि सिर्फ पैकेज की बात, that mean it's a worth it कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो एटलीस्ट इंजीनियरिंग को समझूँ। तो अगर मैं उस अप्रोच से चलता हूँ तो वो बेटर है। अदरवाइज टूल तो कोई भी चला लेगा ना, बीए वाला भी तो चला लेगा टूल करके, हो सकता है उसका दिमाग थोड़ा कम हो तो 1 मिनट टाइम ज़्यादा ले लेगा। इज इट क्लियर ना? बट अब अगर मैं मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के अप्रोच से करता हूँ तो नो बडी कैन रिप्लेस मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर इट इज अ कोविड-19 और एनी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल आप समझो विराट कोहली को रिप्लेस कर देंगे इजीली शिवन? नहीं। क्यों? मैं दूसरा विराट कोहली लाता हूँ, दूसरा विराट कोहली लाता हूँ ना, मैं बीसीसीआई का चेयर हूँ, उनमें भी समझ पा रहे हो ना ये डिफरेंस। सो व्हेन वी हैव अ सच काइंड ऑफ अप्रोच ना, नोबडी कैन रिप्लेस। और मेरी जरूरत सबको है, ठीक, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री चलानी है, जो भी करना है। तो अब पैकेज मैं बताऊंगा मुझे कितना चाहिए, क्योंकि वो सबको नहीं पता ना। तो वट एवर आई एम आस्क तो वो उनको देना होगा, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है आपका। आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए इस टाइप के अप्रोच से पढ़िए, उसको सीखिए, देखिए, इट्स गुड, बट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन और मतलब उसको ये देखना है कि ये करना है, बट इस पे एक रीजनिंग करनी बहुत जरूरी है कि हाउ इट विल प्रोसीड, कैसे हो रहा है ये। एक एक चीज को थिंक करो बिना सोचे हुए। देखो कंप्यूटर साइंस में बिना थिंक किए हुए कुछ भी नहीं लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं इसमें ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक व्हाई वी कैन डू दैट, कैसे हो रहा है ये। पहले व्हाई फोकस करना है, फिर हाउ फोकस करना है। पहले क्यों करना है ये तो पता करना है, ठीक है, फिर हाउ पे जाएंगे कि व्हाट वी आर डिफरेंट वे। फिर आफ्टर दैट द थर्ड स्टेप वी कैन ऑप्टिमाइज ऑल दिस थिंग्स। दैट इज अप्रोच फ्रॉम द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ठीक है, किसी दिन और डिटेल में बात करेंगे। आई थिंक यू हैव गेट योर आंसर। यस, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर, यस सर। गुड। चलो, एनीवन, अनदर, anybody have you any other questions?
Please feel free to ask. Okay. Is it clear? We move further. Please respond. Yes. चलो चलो अब इसको सीखते हैं. अभी हमने क्या सीखा? the LR parser. The LR parser categorized into 4 way: LR0, SLR1, LALR1, SLR1. The LR0 and SLR using the LR0 item, and LALR1 and CLR1 using the LR0 item. Okay. So now that is a bottom up approach. It is a very important. You have mentioned here. Bottom. It is also known as the bottom up parser, not approach. Bottom up. यूपी मत समझ लेना, अप है. Bottom up. Underline also, so that you can easily get this one. Underline is mentioned. बॉटम अप. अब यहाँ पे भी सेम अप्रोच है जो हमने वहां पे सीखा था. क्या सीखा था वहां पे? हियर वी हैव लर्न कि कैसे ये काम करता है, थोड़ा सा सीखेंगे. चलो अब यहाँ पे भी क्या होगा? इनपुट बफर होगा. वी ड्रॉ दिस वन. ओके, एक ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ आपसे. Here we have just seen the simple category. उसके बाद अब डिटेल में, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करूंगा, फिर मैं आऊंगा कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है. ओके, बॉटम अप से तो हमें थोड़ा सा फैमिलियर है ही है कि बॉटम अप का मतलब ही क्या होता है. Here you can draw this one. It is a basic block diagram so that you can, sorry, the line is this one, and here you have mentioned bold also, and after here we have mentioned the input buffer. Input. Is it clear? And after that you have mentioned the LR parser. Input buffer, here in the LR parser. And after that few distance you have mentioned the output. And here you have mentioned the simple. ये बेसिक डायग्राम है जिससे हमें ये समझ में आएगा कैसे काम करता है ये LR पार्सिंग टेबल. अब देखो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो समझने का मैं बता रहा हूँ आपको. This is the input buffer. Okay, this is the LR parser. And this is the very important the LR parsing table. देखो पार्सिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो पार्सिंग टेबल करता है. Why it is a very important? Because here we have a अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट स्टेप कैसे मूव करना है. जो डिसीजन वाला पार्ट होता है सारा काम यही करता है. ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या, देखो जैसे टॉप डाउन था सेम अप्रोच है. ठीक है, सिमिलर है बहुत सारी चीजें, बट क्या क्या करता है ये समझते हैं. देखो ठीक है, ये हो गया स्टैक, इनपुट बफर, ठीक है, LR पार्सिंग टेबल एंड आउटपुट. ओके, अब यहाँ पे यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ बॉटम अप अप्रोच व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इज कि मैं चिल्ड्रन से स्टार्ट करूंगा और रूट तक जाऊंगा. इज इट क्लियर? इट इज अ फंडामेंटल डेफिनेशन. बट हाउ इट इज एग्जैक्टली वर्क इन LR पार्सर? वी हैव ऑलरेडी नोन सम स्टैक इज इन्वॉल्व. स्टैक होगा, इनपुट बफर होगा,
और जो मेरा LR पार्सिंग टेबल होगा, इट इज टेक द डिसीजन कि कैसे मुझे मूवमेंट करना है, क्या करना है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और व्हाट इज द आउटपुट वी हैव गेट, क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. ये सब इनपुट देने के बाद LR पार्सर को इनपुट बफर भी मिलेगा, स्टैक भी, LR पार्सिंग, व्हाट आउटपुट वी हैव गेट, एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. वी गेट द पार्सिंग टेबल और पार्स ट्री. समझ पा रहे हैं? आर यू एबल टू गेट दिस पॉइंट और नॉट? सबको मिला के मुझे क्या मैं समझ पाऊंगा. एक पार्स ट्री टाइप का कुछ बनेगा एज ए आउटपुट, कुछ में बनेगा कुछ में नहीं बनेगा. इट इज नॉट एबल टू बिल्ड अप, बट व्हाट इज आवर अप्रोच कि हमें एक पार्स ट्री जनरेट करना. ठीक है. इनपुट क्या होगा, स्टैक होगा, इनपुट बफर होगा, LR पार्सिंग टेबल होगा एंड LR पार्सर होगा. So here we have reached it here. It is very important. We have already known the LR parser. So change the color also. Okay. We already know the LR parser categorized into 4 categories: LR0, SLR1, LLR1, and CLR1. So all the time, everything is the same. Everything is the same except this one. सिर्फ सारे केस में क्या होगा, LR0, SLR1, LLR1, CLR1. All the cases parsing table must be different. जो LR parsing table है वो different होगा, बाकी चीजें same होंगी. Is it clear? Have you any doubt, any questions? We have a upcoming class. We have discussed what is a step to solve the LR0 sum and what is the algorithm and how we can solve this LR0 item and how we can construct the LR0 parsing table. हम दोनों चीजें लर्न करेंगे. ठीक है. तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज whatever we have studied today, please recall, and whatever link we have share, you can go to my YouTube channel where we have a easily day by day lecture I have uploaded, so that usually get the revision, maybe some obstacles at that time, so that you can get the revision, all those things. ठीक है. तो जिससे आप इजिली करके अच्छे से कर पाए. ओके, चलो, thank you. I have to stop the recording here.